Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Very warm welcome to Rifa International College. My name is Rahil Ahmed, and today we are going to discuss negative messages, chapter 7. And in this chapter, we are going to discuss point number 7.1, 7.2, and 7.3. Remember, my dear students, this is the very first lecture after midterm examination. I'm very hopeful that you would have got good marks in your midterm examination. My all prayers are with you, and hopefully today you are once again very warmly welcome to a new phase, a new chapter. In this chapter we are going to discuss negative news, or you can say negative messages. Let's talk about negative messages. Dear students, of course, this is our way of beginning of the chapter. That we first of all we look at the objective. That in this lecture we are going to achieve these three objectives. First of all, understand the goals of business communicators in conveying negative news. Remember, we will be able to understand the goals of business communicators in conveying negative news. Remember, my dear students, negative news, and then compare the strategies and ethics of direct and indirect plans in communicating negative news. Is right? Negative news. And then the last and the not the least but most important, explain the components of negative messages, including opening with a buffer, apologizing, showing two times showing it written, showing empathy, presenting the reasons, cushioning the bad news, and closing pleasantly. These things we are going to achieve inshallah after this lecture. Let's start the lecture. My dear students, remember one thing, that we are going to talk about negative news or negative information, or whatever you want to say regarding negative news. In any company, in any organization, in anywhere in the world, there are number of time it's very common that you can find negativity or a negative news or a negative information regarding customers, regarding company, regarding their employees. So every news related, that is a little a sort of information, you can say, definition of negative news is every news related to negative information is considered as a negative news. कि हर तरह की ऐसी खबर जो मनफी असर रखे उसको नेगेटिव या मनफी खबर के तौर पर लिया जाता है, जो कि यकीनी तौर पर किसी भी कंपनी के लिए या उसके एम्प्लॉय के लिए या उसके कस्टमर के लिए अच्छा नहीं समझा जाएगा. उसमें कोई ऐसी खबर होगी जो पॉजिटिव नहीं होगी, जो मुस्बत नहीं होगी. अब इसमें जनरली इंट्रोडक्टरी तौर पर अगर बात कर लें तो इन एनी बिजनेस नंबर ऑफ टाइम सिचुएशंस बिकम सो इररेलेवेंट, like delay of order, wrong address, wrong billing, refusing requests, turning down invitations and responding to unhappy customers etc. तो ये सिचुएशंस जो है इनकी वजह से नेगेटिव न्यूज़ जो है वो अपीयर होती है. आप किसी कस्टमर्स को जब रिफ्यूज़ कर रहे हैं उसके किसी रिक्वेस्ट को, तब भी एक नेगेटिव न्यूज़ डेवलप होगी. टर्निंग डाउन द इन्विटेशंस, अगर आपको किसी की तरफ से इन्विटेशन मिला है और आप उसको टर्न डाउन कर रहे हैं, देन इट ऑल्सो बिकम अ नेगेटिव रिप्लाई. उसके बाद जी किसी तरह का रॉन्ग बिल आ जाता है या आपका रॉन्ग एड्रेस हो जाता है. किसी भी तरह से कोई आपको लेटर, अपने कंपनी ने किसी किसी भी एम्प्लॉय या अपने कस्टमर को लेटर सेंड किया, जैसा कि मोस्टली हमारे बैंक्स में, पाकिस्तान में बैंक्स में होता है कि एड्रेस अक्सर बेशतर गलत जो लेटर्स गलत एड्रेस पर चले जाते हैं. तो उसमें जो है वो जो है नेगेटिव न्यूज़ जो है या नेगेटिव इन्फॉर्मेशन वो आती है और उस पर फिर कम्युनिकेट करना पड़ता है. तो इंशाल्लाह इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन नेगेटिव जो सिचुएशन बन जाती हैं उनको किस तरह से डील करते हैं. सो लेट्स एक्सप्लोर इट इन डिटेल.
how to achieve your goals in communicating negative news, that is a point or slide number 1 of 1. देखिए, हाउ टू अचीव योर गोल्स इन कम्युनिकेटिंग नेगेटिव न्यूज़, ये याद रखिएगा मेरी बात के नेगेटिव खबर जो है किसी का एम्प्लॉय को या किसी कस्टमर को पहुंचाना ये आसान काम नहीं होता. इट इज़ अ क्वाइट अ लिटिल ट्रिकी और अ लिटिल हार्ड वर्क. ये सम टाइम ऐसा होता है कि जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है आपको. उसमें बड़ा जिसे कहते हैं कि आपको एथिकली भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है और आपको यू मस्ट नो हाउ टू प्ले वर्ड्स सो दैट कि आपकी नेगेटिव न्यूज़ जो है वो भी पॉजिटिव या एटलीस्ट ये है कि उसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो इतना पावरफुल ना हो. तो इस लिहाज से कहता है कि इट इज़ नॉट ईजी टू गिव नेगेटिव न्यूज़ टू एनी कस्टमर बट इट कैन बी ग्रेटिफाइंग इफ़ वन डज इट इफेक्टिवली. इससे बड़ा तसल्ली मिल जाती है इंसान को, शुक्रगुजार और सेटिस्फाइड होता है कि अगर आप उस नेगेटिव न्यूज़ को बेहतर अंदाज से अपने कस्टमर को पहुंचाते हैं. एज अ बिजनेस कम्युनिकेटर वर्किंग विद बैड न्यूज़ इज़ एन आर्ट. ये एक किस्म का आर्ट है, ये फ़न होता है. और ये फ़न जो है, ये मैंने अक्सर बेशतर जगहों पे पढ़ा है कि ये फ़न जो है वो एक दिन में या डे नाइट में विद इन ओवरनाइट आपके पास नहीं आ जाता. यू मस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम विद सम एक्सपीरियंसेस ये आपके पास जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है. सो वन मस्ट मास्टर इट टू अचीव हिज गोल्स. अगर किसी ने इसको अचीव करना है, अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है, तो उनको ये वाली आगे आने वाली जो चीज़ें हैं उनको समझना होगा. उसमें सबसे पहले ये चीज़ है एक्सप्लेन क्लियरली एंड कम्प्लीटली. जब आप किसी को कोई नेगेटिव न्यूज़ बाय वर्ड्स सुनाना चाह रहे हैं, ये मैं बाय वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, वर्बली की बात कर रहा हूँ. समटाइम ऐसा होता है, आपको भी पता है कि कॉल्स आती हैं और अक्सर बेशतर मैसेजेस आते हैं बैंक की तरफ से भी, आपके सेलुलर कंपनीज की जानिब से भी कि जी फ़लाँ टाइम पर आपकी कोई ख़ास किस्म की सर्विसेज जो है बैंक की जानिब से, एटीएम की सर्विसेज जो है वो ब्लॉक होंगी, वो बंद होंगी. तो वो जो है वो जो कि नेगेटिव न्यूज़ एक होती है जिसको उसने बड़े पॉजिटिवली अंदाज से बयान किया गया होता है. उसमें विद इन अ वेरी स्पेसिफिक वर्ड्स जो है वो उसको समझा दिया गया होता है और कस्टमर जो है वो उसको अंडरस्टैंड करता है. तो कहता है कि एक्सप्लेन क्लियरली एंड कम्प्लीटली, उसको बड़ा वाज़ह तौर पर और मुकम्मल तौर पर जो है वो बयान कर दिया जाए जो ख़बर हो, नेगेटिव न्यूज़ हो. एक्सेप्ट बैड न्यूज़, और अगर वो बैड न्यूज़ उसको ऑन करना पड़ेगा. रिमेंबर इट, अगर आप ऑन नहीं करते उसका खमियाजा वो किसी और को मरूद इल्ज़ाम ठहराएंगे तो वो आपके लिए, वो कंपनी के लिए जो है वो एक पिटफॉल बन जाएगा. तो कस्टमर अंडरस्टैंड इन द बेस्ट वे, लिहाजा ताकि कस्टमर जो है वो आपकी लॉयल्टी को समझे, आपकी एफर्ट को समझे. नेक्स्ट बात आ जाती है प्रोजेक्ट अ प्रोफेशनल इमेज. जब आप सामने अपनी इस तरह से एक लॉयल बन के अपनी कंपनी की तरफ से और बड़ा अच्छा पॉजिटिव वे में बयान करते हैं, प्रोफेशनल वे में इमेज बयान कर दिखाते हैं अपनी कंपनी का, चाहे नेगेटिव न्यूज़ के ज़रिए, तो उससे क्या होगा, इवन व्हेन द कस्टमर्स साउंडिंग रूड एंड ओवरस्टेट देयर क्लेम्स यू शुड बी स्ट्राइव स्टे काम. अगर ऐसे सिचुएशन में कस्टमर भी जो है वो एग्रेसिव हो रहा है, रूड हो रहा है, तो जो है कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होने के तौर पर वन मस्ट स्टे काम, यूज पोलाइट लैंग्वेज एंड रिस्पॉन्ड विद अ क्लियर एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, कन्वे एम्पैथी एंड सेंसिटिविटी. Empathy means try to use language that respects the receivers but also attempt to reduce bad feelings. When appropriate, accept the blame and apologize. याद रखिएगा कि इसमें ये सेंसिटिविटी को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है कि आपने जो है वो ब्लेम गेम नहीं खेलनी, बल्कि आपने जो कंपनी की मिस्टेक है उसको एक्सेप्ट करना है और जो है वो बैड फीलिंग्स जो है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है. समटाइम ऐसा होता है, याद रखिएगा कि जब तक कस्टमर जो है वो अपनी भड़ास नहीं निकालेगा, मैं इसको आपको आसान अल्फाज में बयान करूं, वो अपने एग्रेशन शो नहीं कर देगा, उसका जो गुस्सा है, उसका एंगर ख़त्म नहीं होता. तो उसके मुकाबले में अगर आप भी वैसा ही रिएक्ट करेंगे बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी, तो फिर वो क्या होगा, वो एप्रोप्रिएटनेस ख़त्म हो जाएगी. आपको एक्सेप्ट करना होगा और उस पर फिर अपोलोजाइज भी करना पड़ेगा आपको. इसी में इसका दूसरा पॉइंट, इसका पॉइंट नंबर 4 है, बी फेयर.
when you can show that the decision was fair, जब आपको पता चलता है कि डिसीजन आपको पता होता है कि डिसीजन है ही फेयर, तो फिर आप वो डिसीजंस, वो फैसले जो है वो सामने रखते हैं, तो वो इम्पार्शियल भी होती है, वो रैशनल भी होती है, और रिसीवर्स आर मोर लाइकली टू एक्सेप्ट द नेगेटिव न्यूज़। तो फिर जो रिसीवर होता है उसे पता होता है कि भाई आप जो है या कंपनी जो है वो ये कुछ जो भी नेगेटिव न्यूज़ या नेगेटिविटी जो शो हो रही है कंपनी की जानिब से, वो किसी हद तक वो कंपनी के जो है वो कंपनी की जानिब से जानबूझकर नहीं है, वो रैशनल नहीं है, वो ज़रूरत है इस वजह से ऐसा कोई नेगेटिविटी शो डेवलप हो रही है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट है इसी हाउ टू अचीव योर गोल में, कम्युनिकेशन में मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप। याद रखिएगा, जब भी ये मेरे साथ ज़ाती एक्सपीरियंस भी हो चुका हुआ है कि बैंक में मेरी ओवर स्टेटमेंट बन चुकी हुई थी, मैंने रिटर्न करने थे पैसे, लेकिन उसकी कह सकते हैं किसी हद तक कि मैं एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो था वो मेरा डिफ़ॉल्टर हो चुका हुआ था, पैसे मैं पे ना कर पाया। तो बैंक ने फिर अपने एक नुमाइंदे को मुझे एग्जैक्टली जब मैं ये पढ़ रहा था, जब मैं डेवलप कर रहा था लेसन आपका, तो मैंने इसमें देखा कि वो बड़े अच्छे अंदाज से उस बंदे ने मेरे तक अप्रोच किया और मुझे ये चीज़ बड़ी पॉजिटिवली गाइड की कि सर आपके इतने आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आप इसको इस तरीके से यानी कि शॉर्ट इंस्टॉलमेंट में सबमिट करवा सकते हैं, और जब आप ये जो स्पेसिफिक जो अमाउंट है सबमिट करवा देंगे तो आपके जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो वेव ऑफ कर दी जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसने बड़ा फ्रेंडली में होकर बड़ा अच्छा ताल्लुक बना के मेरे साथ गुफ्तगू की, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे हालांकि नेगेटिव न्यूज़ थी मेरे लिए, लेकिन वो मेरे लिए पॉजिटिव के तौर पर काम आई। ठीक है, तो इसमें यह है कि आपका रिलेशन जो है वो बड़ा फ्रेंडली, बड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। समटाइम नेगेटिव रिएक्शन भी आता है, उसको पॉजिटिवली उसको लेना चाहिए। अ फाइनल गोल इज टू डिमॉन्स्ट्रेट you to continue pleasant relations and regain the confidence of the customer का जो है वो आपको confidence regain करना होता है, as I told you। let's see the next point, जिसे हम स्ट्रेटजीज कहा जाता है। जो नेगेटिव न्यूज़ में जो स्ट्रेटजीज अप्लाई होती हैं उसको हम देखते हैं। एनालाइज नेगेटिव न्यूज़ स्ट्रेटजीज। तो एनालाइज जब हम करते हैं इसमें, तो टू सक्सेसफुली कन्वे बैड न्यूज़, राइटर्स मस्ट केयरफुली कंसिडर द ऑडियंस, पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट। याद ये रखने की बात है कि अगर आपने सक्सेसफुली बैड न्यूज़ को कन्वे करना है तो राइटर के जो है वो सॉरी जो लिसनर्स हैं उसकी जो सिचुएशन है, उसको पर्पस को, उसके कॉन्टेक्स्ट को, ऑडियंस की प्रोफाइलिंग को आपको अच्छी तरह जांचना पड़ेगा, तब आप नेगेटिव न्यूज़ को बेहतर अंदाज से जो है वो बयान कर सकते हैं, ताकि वो कस्टमर जो आपको एक्सेप्ट कर सके। सो दैट देयर आर टू बेसिक स्ट्रेटजीज। तो इस तरह के मामलात में दो मेन स्ट्रेटजीज जो हैं जिसको अप्लाई किया जाता है फॉर डिलीवरिंग नेगेटिव न्यूज। द वन इज डायरेक्ट एंड द अदर इज इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी। When to use the direct strategy? डायरेक्ट स्ट्रेटजी कब यूज होती है? डायरेक्ट स्ट्रेटजी saves time and is preferred more professional and ethical than the indirect strategy. The direct strategy may be more effective in institutions such as the following. In situations such as the following, कहता है कि इस तरह जो डायरेक्ट स्ट्रेटजी होती है इन मामलात में, इन हालात में ज़्यादा काबिल कदर होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन द बैड न्यूज़ इज़ नॉट डैमेजिंग। डायरेक्ट स्ट्रेटजी हम कब अप्लाई करती हैं? जब बैड न्यूज़ ऐसी हमने अप्लाई करनी है जो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग नहीं है, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, वो इतनी ज़्यादा जिसको हम कह सकते हैं कि किसी हद तक उस पर ओवरकम किया जा सकता है। व्हेन द रिसीवर मे ओवरलुक द बैड न्यूज़, कि बैड न्यूज़ फॉर एग्जाम्पल इस तरह से भी हो सकती है कि किसी कंपनी ने मतलब कंपनी ने की जानिब से कुछ जो है वो स्ट्रेटजी ब्लॉक कर दी गई है, और सॉरी जो वो आपको जो कंपनी ने कुछ सहूलियत जो है वो ख़त्म कर दी हैं,
उसकी जगह पर वो कुछ ऐसी सहूलियात लेकर आई है जो मे बी कस्टमर के लिए इतनी सूटेबल ना हो, लेकिन कस्टमर ने चूंकि वो पहले भी उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करता था वो फैसिलिटीज़ को, तो उसने आने वाली चीज़ों को भी जो है वो और वो जो नेगेटिव न्यूज़ थी कि वो बंद कर दी गई है उसको भी उसने ओवरलुक कर दिया। तो ये लाइट सी एक किस्म की नेगेटिव न्यूज़ होती है। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन और रिसीवर्स प्रेफर्स डायरेक्टनेस, इसमें डायरेक्ट हो जाता है, इनडायरेक्ट नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली कस्टमर से बात होती है और उसको जो है वो नेगेटिव न्यूज़ से आगाह कर दिया जाता है। फिर उसमें आ जाता है कि व्हेन फर्मनेस इज नेसेसरी। व्हेन फर्मनेस इज नेसेसरी, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है डायरेक्ट स्ट्रेटजी के अंदर जब आपको डिले नहीं करना होता मैसेज। याद रखिएगा, डू नॉट डिले द मैसेज। इसमें क्या होता है कि इसमें आपने डिमॉन्स्ट्रेट कर देना होता है और डिटरमिन करना होता है कि मैसेज जो है वो डिले ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमारे पास बुक में भी एक एग्जांपल दी गई हुई है कि सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से कुछ डाटा जो है वो लीक आउट हो चुका हुआ है। अब इस चीज़ को बयान करना है तो इसको आपने बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना, आपने अपने ईमेल में, अपने लेटर में कि जी आपका इस तरह डाटा जो है वो ब्रीच हो गया हुआ है या थोड़ा लूज हो गया हुआ है या सिक्योरिटी की वजह से, बल्कि आपने उसे विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, मतलब चंद एक दो स्टार्टिंग लाइंस के बाद जो है उसको डिस्प्ले कर देना, उसको प्रेजेंट कर देना कि ये इशू है। तो इसमें क्या होता है कि फिर इसमें राइटर जो लिसनर जो है या आपके जो सुनने वाले हैं वो फिर उसमें जो सस्पेंस है वो ख़त्म हो जाएगा जल्दी से और वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं। जनाब इसके बाद आ जाता है कि व्हेन टू यूज इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी। ये डायरेक्ट स्ट्रेटजी के बाद इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज की जानिब जो है हम बढ़ रहे हैं। इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज में जो बैड न्यूज है वो डायरेक्टली, वो इमीडिएटली नहीं एक्सपोज की जाती। इसमें जो याद रखने की, जो समझने की बात है वो ये है कि सॉरी फॉर अ बैड टॉन्सल्स, द इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी डज नॉट रिवील द बैड न्यूज इमीडिएटली। इसमें बैड न्यूज, याद रखिए दोनों में फर्क जो है वो मेजर यही है कि डायरेक्ट स्ट्रेटजी में आप बैड न्यूज को फौरन ही विद इन स्पेसिफिक और ओपनिंग लाइन के बाद आप जो है वो डायरेक्ट स्ट्रेटजी में आप नेगेटिव न्यूज को एक्सपोज कर देते हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज डज नॉट रिवील द बैड न्यूज इमीडिएटली रिगार्डलेस में many communicators prefer to use the indirect strategies to soften negative news। बहुत सारे जो हैं वो कम्युनिकेटर्स जो हैं वो ये चीज़ प्रेफर करते हैं कि इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी अप्लाई की जाए ताकि नेगेटिव न्यूज़ जो है वो उसका जो बैड इम्पैक्ट है, उसका जो जिसे कहते हैं ना झटका लगना, वो थोड़ा सा कंट्रोल हो सके। इसलिए वेयर एज गुड न्यूज़ कैन बी रिवील्ड क्विकली, जबकि अच्छी खबर जो होती है वो हमेशा जल्दी फौरन बता दी जाती है। बैड न्यूज़ में बी ईजियर टू एक्सेप्ट व्हेन ब्रोकन ग्रेजुअली, और जब बैड न्यूज़ होती है उसको आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा करके बताया जाए तो वो आसानी से एक्सेप्ट हो जाती है। Here are typical instances in which the indirect strategy work well. So when the bad news is personally upsetting, तो इसमें हम ये करते हैं कि if the negative news involves the receivers personally, such as a layoff notice, the indirect strategy makes sense absolutely. Telling an employee that he or she no longer has a job, probably best done in person. ठीक है, तो उसमें पर्सन को डायरेक्टली बताया जाता है एंड स्टार्टिंग इनडायरेक्टली एंड गिविंग रीजंस फर्स्ट। तो उसमें सबसे पहले रीजंस बताए जाते हैं कि आपकी ये अपने प्रॉब्लम क्रिएट की या इस तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस जो है वो जारी नहीं रख पाए, इसलिए आपको पर्सनली इन्फॉर्म किया जा रहा है कि यू आर फायर फ्रॉम द पर्टिकुलर जॉब। उसके बाद सेकंड आ जाता है व्हेन द बैड न्यूज़ विल प्रोवोक अ हॉस्टाइल रिएक्शन। समटाइम ऐसा होता है जब आपने बैड न्यूज़ जो है वो जैसे ही आप बैड न्यूज़ को या नेगेटिव न्यूज़ को, बैड न्यूज़ मीन टू से नेगेटिव न्यूज़ को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं या ओपन करते हैं तो वो एक ऐसा रिएक्शन प्रोवोक कर देता है जो कि खासा जो है वो कंपनी की अपनी जो प्रोफाइल है उसको नेगेटिव कर जाता है।
लिहाजा इसमें ये होता है कि इसमें अप्लाई ये किया जाता है कि एक बफर जोन डेवलप कर लिया जाता है, एक बफरिंग की शुरू की जाती है जिससे कि जिसमें जो है वो लेस सीवियरिटी शो की जाती है, ताकि जो है कस्टमर का ये जो रिएक्शन है उसको कूल डाउन किया जा सके, और अक्सर व बेशतर रीजंस के साथ, वजूहात के साथ जो है वो बैड न्यूज़ उसको जो कन्वे किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि व्हेन द बैड न्यूज थ्रेटन्स द कस्टमर रिलेशनशिप। इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी हमेशा हेल्प करती है कि जब आपका कस्टमर के साथ रिलेशन नेगेटिव हो जाता है, तो इनडायरेक्टली मीन टू से अगेन वही बात है कि आपने जो नेगेटिव न्यूज़ है वो डायरेक्टली नहीं देनी, सम टाइम उसमें थोड़ा सा उसको जो प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, उसको ब्रेकअप कर लेते हैं, तो वो उसका जो रिएक्शन है वो थोड़ा कम हो जाता है। उसमें लास्टली ये बात करता है इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज में कि व्हेन द बैड न्यूज़ इज अनएक्सपेक्टेड। समटाइम ऐसा होता है कि बैड न्यूज़ या नेगेटिव न्यूज़ जो है वो अनएक्सपेक्टेड होती है, उसमें भी इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी जो है वो ग्रेजुअली हेल्प आउट करती है कि अनएक्सपेक्टेड खबर जो है उसको भी, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ को भी जो है वो लिंकेज देकर उसको सॉफ्टन करके वो रिप्रेजेंट करती है। उसमें क्वेश्चंस भी वो रखे जाते हैं थोड़ा सा उनको, और नेगेटिव रिएक्शन जो है उसको भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जितना भी आप इसमें पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करें, लेकिन जब ये सडन रिएक्शन, सडन अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, बैड न्यूज़ जो है वो सामने आती है या नेगेटिव न्यूज़ सामने आती है, तो कुछ रिएक्शन जो है वो सामने ज़रूर आते हैं लोगों के। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें, कीपिंग द इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी एथिकल। जब हम इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो उसको हमें एथिकल रखना पड़ता है। अब एथिकल का मतलब यहाँ पर ये हरगिज़ नहीं है कि आपने मैंने पहले भी स्टार्ट में भी बात ये बयान की थी कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने जब कोई नेगेटिव न्यूज़ और क्वेश्चनिंग आपसे हो तो आप उसका बिल्कुल रिएक्शन जो है वो वाइडली रिएक्ट करें, बल्कि आपको सैनली उसका रिएक्ट करना पड़ता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो 1, 2, 3 और 4 पॉइंट्स। इसमें पॉइंट्स इस तरह से इसको रखा गया हुआ है। बफर मीन्स के बेजरर, इसका मतलब होता है बेजरर, कम कर देना, लेसन करना किसी चीज़ को। मेक इट लेस स्वीयर का मतलब होता है बफर। तो स्टार्टिंग जो है वो बफरिंग से करनी होती है, बफर से करनी होती है। स्टार्टिंग मतलब ये कि आपने कोई ईमेल करनी है, आपने कोई लेटर जो है वो नेगेटिव न्यूज़ का या कोई मैसेज ही नेगेटिव न्यूज़ का आपने सेंड करना है, तो उसको सॉफ्टली जो है वो स्टार्ट करें, उसको बफर करें, ओपन विद अ न्यूट्रल बट मीनिंगफुल स्टेटमेंट दैट डज नॉट मेंशन द बैड न्यूज़। स्टार्टिंग में आपने क्या करना है इसमें कि स्टेटमेंट जो है वो बड़ी सॉफ्ट और उसको उसमें डायरेक्टली नेगेटिव न्यूज़ जो है वो नहीं शो करनी उसमें। उसके बाद रीजंस देने हैं, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द बैड न्यूज़ बिफोर डिस्क्लोजिंग इट। उसको बैड न्यूज़ को पेश करने से पहले वजूहात बयान कर देनी है कि ये प्रॉब्लम है। लाइक फॉर एग्जांपल आजकल आपको पता है कोविड है, लॉकडाउन है, तो अक्सर और बेशतर प्राइवेट स्कूल जो हैं वो फीसिस जो है वो चार्ज कर रहे हैं। तो आपने अगर देखा हो तो वो स्कूल की फीस के लिए जब मैसेज आता है तो वो उसमें अक्सर और बेशतर यही कहा, डायरेक्टली नहीं कहा ये कहते कि पे योर फीसिस, बल्कि वो कहते हैं कि इन कोविड की सिचुएशन के हालात के पेश नज़र जो है वो आपकी 20% 30% फीस लेस कर दी गई है, सो एज सुन एज पॉसिबल प्लीज़ पे योर फीस। तो इसे कह सकते हैं कि हम रीजंस एज वेल एज बफर के साथ वो छोटी सी खबर को भी आपके सामने पेश किया जाता है। उसके बाद फिर ये नेगेटिव न्यूज़, यानी कि नेगेटिव न्यूज़ ये है कि आप बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे और आपने फ़ी पे करनी है, तो इट मीन्स कि ये पेरेंट्स के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ के तौर पर ही होता है। कस्टमर पेरेंट्स एक ही बात है। रिवील द बैड न्यूज़ विदाउट एम्फसाइजिंग इट, प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव और कंप्रोमाइज इफ इट पॉसिबल। कहता है कि उसको बैड न्यूज़ के अल्टरनेटिव भी देना चाहिए। अल्टरनेटिव मतलब ये कि लाइक फॉर एग्जांपल पेरेंट्स को अक्सर ये भी कहा जाता है कि अगर इस मंथ में नहीं करवा सकते तो नेक्स्ट मंथ में करवा दें, नेक्स्ट मंथ में नहीं है तो इसकी इंस्टॉलमेंट करवा दें ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो पॉजिटिविटी उधर रहती है। तो और क्लोज करते वक्त क्या आता है कि एंड विद अ पर्सनलाइज्ड फॉरवर्ड लुकिंग प्लेजेंट स्टेटमेंट एंड अवॉइड रेफरिंग द बैड न्यूज़। तो क्लोज करते वक्त बार बार जो है वो नेगेटिव न्यूज़ या बैड न्यूज़ के बारे में जो है उसका हवाला देना मुनासिब नहीं होता, बल्कि एक पोलाइट वे में इसको क्लोज करना पड़ता है। तो ये तो है कि कीपिंग द इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी को एथिकल बनाने के लिए एक छोटा सा प्लान आपके सामने रखा हुआ था। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं जो कि
7.3 है कंपोजिंग द इफेक्टिव न्यूज़, इफेक्टिव नेगेटिव मैसेज। आपने नेगेटिव मैसेज जब कंपोज करना है, आपने किसी को भेजना है, तो उसके लिए क्या प्लान जो है वो आप वज़ा करेंगे, क्या प्लान बनाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर का सबसे कोर पॉइंट है, याद रखिएगा। तो इस पर ज़रा फोकस कीजिएगा स्टूडेंट्स। कंपोजिंग इफेक्टिव नेगेटिव मैसेजेस, ठीक है। ओपनिंग इनडायरेक्ट मैसेज विद अ बफर, मैं जैसे पहले भी बयान कर चुका हूं कि ओपनिंग इनडायरेक्ट मैसेज विद अ बफर मीन टू से कि अ बफर इज अ डिवाइस टू रिड्यूस अ शॉक और अ पेन, ठीक है। कि बफर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे शॉक या पेन या दर्द का एहसास जो है वो कम हो जाता है। टू बफर अ बैड न्यूज begin with a neutral but meaningful statement that encourages the readers to continue reading, ताकि रीडर जो है वो अपनी रीडिंग को जारी रख सके। अब यहाँ पर 4 मज़ीद जो है वो स्ट्रेटजीज बयान की गई हैं। ये सेम वही हैं जो हमने इससे पहले इनडायरेक्ट मैसेज में हमने डिस्कस किया था। तो ये है, तो ये भी इनडायरेक्ट मैसेज ही है, लेकिन इसमें हम करने क्या जा रहे हैं, है वो भी इनडायरेक्ट मैसेज था। जो पहले वाली स्लाइड थी, ये है वाली, ये स्लाइड है, ये भी इनडायरेक्ट मैसेज था जिसमें एथिकल स्ट्रेटजी थी जिसको अप्लाई किया गया था। ये एथिकल स्ट्रेटजी है चारों, ठीक है। अब इस एथिकल स्ट्रेटजी को मजीद जो है वो डिटेल में हमने डिस्कस करना है कि हमने जो भी एप्लीकेशन या लेटर जो है या मैसेज जो है कंपोज करना है, तो हमें उस पर कौन सी चीज़ जो है वो जो कि किन किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा बफर में ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनको हमने आज अभी डिस्कस करना है। तो बफर, सबसे पहले बफर की बात कर लेते हैं। तो कहता है कि बफर स्टार्ट विद अ पार्ट ऑफ द मैसेज दैट रिप्रेजेंट्स द बैड न्यूज। तो आपने स्टार्ट किया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें आपने स्टार्ट बफरिंग में, बफर का मतलब यही है कि आपने स्टार्ट कर लेना है, और जब आपने स्टार्ट कर लेना है तो ऑफ कोर्स आप फिर बैड न्यूज़ की जानी पड़ रहे हैं। तो स्टार्ट विद अ पार्ट ऑफ द मैसेज दैट रिप्रेजेंट द बेस्ट न्यूज़, नॉट अ बैड न्यूज़, बेस्ट न्यूज़, ठीक है। प्रेज द रिसीवर्स अकम्पलिशमेंट, और फिर उसके बाद अपने रिसीवर्स को भी जो है उसकी प्रेज भी करनी है, उसको भी शाबाशी देनी है कि आपने जो है वो हमारी जो एक नेगेटिव न्यूज़ थी उसको भी एक्सेप्ट किया। फिर कन्वे थैंक्स फॉर डूइंग बिजनेसेस फॉर शोइंग कॉन्फिडेंस, फिर उसको जो है वो उसके साथ उसको थैंक यू और उसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए आपने उसको थैंक यू करना है, ताकि मेक अ रेलिवेंट स्टेटमेंट, और इसके लिए एक रेलिवेंट स्टेटमेंट भी आपने बनवानी है। फिर करना प्रोवाइड अ ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन एंड शो दैट यू केयर अबाउट द रीडर्स, कि इस तरह से आपने इन्फॉर्मेशन पे करनी, शो करनी है जिस तरह के आप अपने रीडर को, अपने कस्टमर को, अपने जो कंज्यूमर है उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद ओके, सॉरी दैट इज़ अ लिटिल मिस्टेक, वॉजंट श्योर कि ये जो थे वो साथ में ऐड थे। एनी हाउ मैं इसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करता चलूँगा। मैं ये इसीलिए थोड़ा सा अपसेट भी था कि शायद स्लाइड में कोई इशू है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट द आइडिया दैट दिस ट्रांजिशंस वर देयर। सो बेस्ट न्यूज़ को सबसे पहले आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है, बेस्ट न्यूज़ को, और स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ द मैसेज दैट रिप्रेजेंट द बेस्ट न्यूज़। उसके बाद आप आ जाते हैं कि कंप्लायमेंट, आपने उसकी प्रेज करना है, उसको जो कस्टमर है उसकी प्रेज करनी है, उसको तारीफ़ करनी है, ताकि वो जो है मेंटली तौर पे थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाए। फिर अप्रिशिएट करना जब आपका वो कॉन्फिडेंस शो करना शुरू कर दे, और जब आप उससे एग्रीमेंट हो जाए, आप वो बात आपकी मान ले, कंपनी की बात मान लेता है, तो फिर मेक अ रेलिवेंट स्टेटमेंट, अच्छी पॉजिटिव स्टेटमेंट बना जाइए। फैक्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग, और जब फैक्ट्स और अंडरस्टैंडिंग की बात आ जाए तो प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन एंड शो दैट यू कैन केयर अबाउट द रीडर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपको रीडर की जो है वो इस तरह से बयान करने के रीडर को जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, रीडर आपकी बात को, और आप रीडर की और कस्टमर्स की बात को, कस्टमर को खुद जो है वो केयर करते हैं उसकी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपोलोजाइजिंग। मैं पहले स्लाइड कंप्लीट कर लूँ, ओके फाइन।
अपोलोजाइजिंग, याद रखिएगा जब आप बैड न्यूज़ पेश करते हैं, आप कोई ऐसी चीज़ पेश करते हैं तो उसमें अपोलोजाइजिंग वाला लहजा होना चाहिए। अपोलोजाइजिंग सिंसियरली, इसमें आपने बड़ा सिंसियरली उसको अपोलोजाइज करना है, आपने उसको सॉरी और इस तरह के अल्फाज जो है वो यूज़ करने हैं। लेकिन याद रखिएगा उसमें आपने ये एक बड़ा जो है वो टेक्निकल सा पॉइंट है कि आपने इस तरह से भी इतना लेवल पर भी जाके अपोलोजाइज नहीं करना कि कंपनी की प्रेस्टीज जो है वही ख़त्म हो जाए। नंबर 2, और लीगली कोई एक्शन ना ले सके कोई भी कस्टमर। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने तौर पर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने एक्सेप्ट करना। यूज़ गुड जजमेंट, और अकॉर्डिंगली जो है वो अपने कस्टमर को जज करना कि उसके पॉजिटिव बिहेवियर है बैड न्यूज़ सुनने के बाद या नेगेटिव का नेगेटिव ही रहा है। देन आ जाता है कि यूजिंग एम्पथी, इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एंटर इनटू द फीलिंग्स ऑफ द अदर्स। एम्पथी का मतलब यही होता है कि आप दूसरों की फीलिंग को समझे और उनके शूज़ में जाके उस प्रॉब्लम को समझे। तो उसको जब ये कहेंगे कि जी जनाब जितनी आपको इस वक्त तकलीफ़ है इतना ही मैं भी परेशानी से गुजर रहा हूँ, लिहाजा आप जो है ये बैड न्यूज़ या नेगेटिव न्यूज़ या ये जो प्रॉब्लम है वो उसको फेस कर रहे हैं, तो इसलिए कंपनी भी इतना ही परेशान है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी इसमें, जब हम अपोलोजाइजिंग कर रहे होते हैं तो फिर हम ये करते हैं कि फिर हम अपोलोजाइजिंग करते वक्त रीजंस भी बयान करते हैं। एक्सप्लेनिंग क्लियरली, हम उसको बड़ा वाज़े अंदाज से एक्सप्लेन करते हैं रीजंस को कि ये वजूहात थी, ये प्रॉब्लम थी, ये यहाँ पर कंपनी इस लिहाज से प्रॉब्लम में थी कि वो जो है वो नेगेटिव या बैड न्यूज़ जो है वो डेवलप हुई है। फिर आप साइटिंग अदर बेनिफिट्स इफ़ पॉसिबल, अगर लेट्स सपोज कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक प्लान जो है, लाइक फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि अक्सर व बेशतर मेरे सुनने में भी आया हुआ है, ये चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस की हैं कि जब इंश्योरेंस पॉलिसी में जब कोई चेंज आता है तो वो फिर आपको उस पॉलिसी के मुताबिक चेंज करवाने के लिए आपको मज़ीद जो है वो दूसरे रेफरेंसेस वगैरह जो देती है और साथ में दूसरे बेनिफिट्स जो है वो उसको भी शो करती है ताकि जो है वो बैड न्यूज़ कवर हो सके। ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि एक्सप्लेन कंपनी पॉलिसी, फिर वो ये भी कहता है कि अगर आपने साइन किए हुए हैं तो कंपनी की पॉलिसी के मतलब भी डिस्कस कर सकते हैं कि कंपनी की पॉलिसी ही ऐसी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते सम टाइम। और फिर उसमें क्या होता है कि चूज़ अ पॉजिटिव वर्ड्स, जब आप इस तरह की बात करें तो आप हरगिज़ आपको एग्रेशन और जिसे कहते हैं कि आप नेगेटिविटी या नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि पॉजिटिव वर्ड्स और होपफुलनेस जो है वो उसको आपको दिखाना चाहिए ताकि कस्टमर जो है वो आपके साथ जुड़ा रहे। शोइंग फेयरनेस एंड सीरियस इंटेंट जो है वो शो करनी चाहिए कि आप फेयर भी हैं, आप ईमानदार भी हैं और आप सीरियस भी हैं अपने काम में। फिर जब बैड न्यूज़ आप सामने आपके आती है तो आप क्या कर रहे थे, कुशनिंग द बैड न्यूज़ भी। कुशनिंग मतलब ये ऐसा ही है जैसे कोई तकिया होता है, जो कुछ कुशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है। तो कुशनिंग द बैड न्यूज़ मीन टू से कि प्रोटेक्टिंग द बैड न्यूज़। तो बैड न्यूज़ को भी कवर किया होता है इस लिहाज से कि आप उसमें ज़रा भी जो है वो जो उसकी जो स्टिफनेस है उसको कवर अप थोड़ा सा ना सॉफ्टन किया जाता है। तो पोजिशनिंग द बैड न्यूज़ स्ट्रेटेजिकली इंस्टेड ऑफ स्पॉट लाइटिंग इट, यानी कि उसको बिल्कुल बैड इस पूरे खत में या इस पूरे एप्लीकेशन में या पूरे लेटर में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ ही बयान की गई है, उसको स्पॉटलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। उसको सैंडविच द बैड न्यूज़ बिटवीन अदर सेंटेंसेज, दूसरे सेंटेंसेज जुमलों के दरमियान जो है वो उसको रखा जाए ताकि उसकी जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। फिर यूज़ अ पैसिव वॉइस, बैड न्यूज़ प्रेजेंट करते वक्त कभी भी एक्टिव वॉइस नहीं यूज़ करते, हमेशा पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं ताकि उसकी जो सेंसिटिविटी है वो और ज़्यादा कम रहे। हाईलाइटिंग द पॉजिटिविटी, और अगर उसके साथ बैड न्यूज़ के साथ साथ या आपका कोई ऐसी खबर भी है जिसके साथ आप पॉजिटिव न्यूज़ भी जो है उसको जोड़ना चाहें तो उसको भी साथ में क्लियरली और हाईलाइट करके उसको बुलेट्स के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सजेस्टिंग अ कंप्रोमाइज़ और एन अल्टरनेटिव, और फिर उसको अपने तौर पर भी या कंपनी के लेवल पर आकर भी के कह सकते हैं कि भाई हम आपको इससे बेहतर जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। जब आप बैड न्यूज़ को कवर अप कर चुके होंगे पॉजिटिवली तो फिर आप क्लोजिंग कर रहे होते हैं लिखने के मामले में,
तो क्लोजिंग प्लेजेंटली में आप करते हैं कि अल्टरनेटिव फॉलो अप करते हैं, इफ एग्जिस्ट क्लोज द मैसेज विद अ प्लेयर स्टेटमेंट एंड अ गुड विल। आप ऐसा करते हैं कि मतलब जब आप इस तरह का कोई ईमेल या कोई लेटर लिख रहे होते हैं कंपनी की जानिब से, तो फिर आप मजीद ऑप्शन जो है वो उनको साथ रख देते हैं। उन ऑप्शंस में कोई और अगर फार्मूला या कोई और बेनिफिटेबल कोई चीज़ या कोई फ्री भी जो है वो मिल रही है कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो उसको देते हैं ताकि कस्टमर जो है वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो जाए, बैड न्यूज़ की तरफ से उसकी जो है वो तवज्जो हट जाए। फिर कहता है कि फ्रीबीज का मतलब होता है कुछ चीज़ें फ्री दे देना, या कुछ चीज़ें जो है वो आप गिव एक्स्ट्रा समथिंग और गिव गिफ्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे कस्टमर की थोड़ी सी दिलजोई कह सकते हैं। फिर उसके बाद गुड विशेस कर लें, वो भी आपके लिए कस्टमर के रिलेशन में जो है वो आपके साथ अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ फिर आपकी रीसेल और सेल्स की या प्रमोशंस के लिए जो है वो भी आप टैग कर सकते हैं, कोई फ्लायर लगा सकते हैं साथ, ताकि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड रहे। राइट, काफ़ी लेंथी आज की भी वीडियो बन चुकी है, लेकिन ये कि मैं इसे आप यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि हमारा 7.3 जो है पॉइंट यहाँ पर कवर अप हो रहा है। तो हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया, मैं इसको कवर अप करने लगा एक छोटा सा ओवरव्यू दे के कि 3 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है कि जो हमने लास्टली पॉइंट डिस्कस किया उसमें हमने एनालाइज द नेगेटिव न्यूज़ स्ट्रेटजी को डिस्कस किया है, नेगेटिव मैसेजेस को डिस्कस किया है, कम्युनिकेटिंग नेगेटिव इफेक्टिवली उसको डिस्कस किया, और उसके साथ साथ हमने कंपोजिंग इफेक्टिव नेगेटिव मैसेजेस जो है जिसको लास्ट पॉइंट था उसको हमने डिस्कस किया। और इसका क्लोजिंग तो आपको पता ही है कि उसमें प्रमोशंस वगैरह को ऐड जैसे मैंने पहले बोला। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग इट। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।